compliance manager and internal auditor. So we will start the training on GCP. So any trial conduct in India, so it should be conducted as per the GCP. Now what is GCP? GCP is a good clinical practices. It is the full form of GCP, and ICH is 1 minute, huh? ICH GCP is ICH International Conference on Harmonization, and GCP is good clinical practices. So why it should be needed to conduct a trial as per the GCP? So GCP is a standard benchmark which should be conducted as per the rule and regulations. It should be checked as per the drug safety, quality, and efficacy. And it is applicable to drug trial, biological trial, and medical devices trial. So it consists of guideline principles, standard and requirement of TCGI, and other requirement. So I see a GCP standards for designing the protocol or designing the trial. It should be conducted the protocol, conducted the trial, or recorded and reporting. Now, what is a GCP document? So it contains the protocol, investigator brochure content. Investigator brochure content is the document which include about the information about the drug. Now, when the approval of DCGI begins, then we go for the EC approval. So, as per the GCP, in all the trials conducted should be as per the GCP and EC requirement and DCGI requirement. Sir, you all have gone through the PPTs now, or do you have the PPTs now? PC actually. Sir, your voice is not clear. Hello. Sir, your voice is not clear. मैम अभी तो सबके पास पीपीटी नहीं है क्योंकि उज्ज्वला बक्की मैम के भी पास पीपीटी नहीं है. शी इज इन ओपीडी. ओके, सो ठीक है सर, कोई नहीं, मैं फिर बता देती हूँ. जीसीपी डॉक्यूमेंट में व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स इन जीसीपी? सो इट कंटेन्स द डीसीजीआई अप्रूवल, इट कंटेन्स द ईसी अप्रूवल, comply with protocol, informed consent form. Now informed consent form is a form which includes about the which talks about the all the rights and safety of patient, medical management, product accountability, source data. Now source data, what is the source data? So data which contains information about the clinical trial which written on the paper, so it is source data. Now we will go on the EC requirement. So अभी कुछ दिन पहले 21 सितंबर 2019 को कुछ चेंजेस हुए थे, तो अभी हम वही चेंजेस के बारे में बात करेंगे. So if we want to conduct a trial in any hospital in India, we will first go to the DCGI, Drug Control of India. Once the approval gets by the DCGI, so now we have to go on EC. Then what is EC? Ethics Committee. So there are two types of ethics committee. One is for clinical trials and BAB studies, and one is for biomedical and health research. So पहले क्या था सर, किसी भी हॉस्पिटल का अपना EC होने के बाद EC रजिस्ट्रेशन कराते थे और वो 3 years के लिए वैलिड होता था रजिस्ट्रेशन. So now the change is it is gone through the 3 years to 5 years. एक बार हमारी EC रजिस्टर होने के बाद अब 5 साल तक हमें री रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So now the first change is 3 years to 5 years. Okay. क्या सर? जो 5 साल तक हमारा रजिस्ट्रेशन चलेगा ना? हाँ. तो मंथली क्वार्टरली 6 मंथली या ईयरली उनको कुछ डेटा या कुछ भेजना पड़ेगा कि हाँ सर, एक बार हमारा EC रजिस्टर हो जाएगा, ये हमारे
ईसी रजिस्टर होने के बाद वो 5 साल तक वैलिड रहेगा। जब हम इस हॉस्पिटल में कोई भी ट्रायल शुरू करेंगे, ठीक है, ईसी रजिस्टर होने के हाँ, बाद, तो वो जो ट्रायल का रिपोर्ट होता है ना, उस ट्रायल में कितने इनरोलमेंट हुए, मतलब आपने कितने पेशेंट दिए हैं उस ट्रायल में, उसका इनरोलमेंट स्टेटस हमको क्वार्टरली रिपोर्ट डीसीजीआई को सबमिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वार्टर और रिपोर्ट होता है। हाँ, एक और रिपोर्ट होता है 6 मंथली स्टेटस रिपोर्ट, विच इज द डॉक्यूमेंट टॉक्स अबाउट द प्रोग्रेस रिपोर्ट। मतलब ट्रायल शुरू होने के बाद उसमें कितने पेशेंट हुए हैं, उसमें कितने एसएई हुए हैं, एसएई जो सीरियस एडवर्स इवेंट, कितने इवेंट हुए हैं, कितने एडवर्स इवेंट हुए हैं, अगर हमने 15 पेशेंट स्क्रीन किए हैं तो उसमें से कितने रैंडमाइज किए हैं। सो इट कंटेन्स अबाउट द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रायल। इस तरीके का रिपोर्ट को हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं, और वो हमें 6 मंथली डीसीजीआई को सबमिट करना होता है। लेकिन सर, ये डीसीजीआई को जो सबमिट करने होते हैं ये रिपोर्ट, वो इन्वेस्टिगेटर करते हैं, वो ईसी का काम नहीं है। ठीक है, हमारी जब ईसी रजिस्टर हो जाएगी तो ईसी का काम क्या होगा कि हॉस्पिटल में कोई भी ट्रायल कंडक्ट करने से पहले उनको अप्रूवल चाहिए डीसीजीआई से फर्स्ट, और देन ईसी से। ईसी का अप्रूवल होने के बाद कोई भी ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं, और वो स्टार्ट करने के बाद हमको 6 मंथली स्टेटस रिपोर्ट डीसीजीआई के पास सबमिट करना पड़ता है, बट इट शुड बी गोन थ्रू द इन्वेस्टिगेटर ओनली। वो रिपोर्ट हम तो ये डीसीजीआई को भी सबमिट। इन्वेस्टिगेटर क्या सर? पत्की हॉस्पिटल के लिए हम अभी ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट एक हमारा वैसे भी चल रहा है। तो हाँ अगर हम सोचो कि एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो हाँ अप्रूवल तो इथिकल कमेटी देगी, क्या कुछ नहीं, हाँ वो तो हो हाँ जाएगा। हाँ लेकिन उसके बाद हाँ। आपने किसका अप्रूवल वो बाद में? सब सर, कोई भी ट्रायल अगर हम इंडिया में करते हैं, सबसे पहले हमको डीसीजीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। ड्रग ट्रायल के लिए, ड्रग ट्रायल डिवाइस ट्रायल के लिए हमको डीसीजीआई का अप्रूवल, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, उनका अप्रूवल चाहिए होता है। उनका अप्रूवल होने के बाद हम एथिक्स कमेटी का अप्रूवल लेते हैं, और फिर हम ट्रायल स्टार्ट करते हैं। डीसीजीआई का अप्रूवल कैसे लेंगे फिर हम? सर, वो स्पॉन्सर लेते, जैसे सर मान लो सिप्ला ने कोई मेडिसिन बनाई है, ठीक है, सिप्ला फार्मा ने कोई मेडिसिन बनाई है, तो वो स्पॉन्सर ही सबमिट करते हैं डीसीजीआई के पास, और वहां से अप्रूवल लेते हैं। स्पॉन्सर को एक बार अप्रूवल मिल गया तो वो एथिक्स कमेटी के पास आते हैं अप्रूवल। वो मतलब किसी भी डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं, डॉक्टर को कांटेक्ट करने के बाद जो भी हॉस्पिटल का डॉक्टर है ना, वो ईसी के पास सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट, अपने ईसी के पास, अपने हॉस्पिटल के ईसी के पास। जैसे आपके यहाँ पे कोई ट्रायल चल रहा है ना पटकी हाँ, हॉस्पिटल में, तो जो भी डॉक्टर वो ट्रायल कर रहे होंगे ना, उनको किसी ने अप्रोच किया होगा, किसी फार्मा कंपनी ने, जैसे मान लो किसी सिप्ला ने उनको अप्रोच किया होगा कि सर हमको ये ट्रायल करना है आपके हॉस्पिटल में, तो सर ने बोला होगा ठीक है, ये अगर डीसीजीआई से अप्रूव है तो फिर मैं ईसी से अप्रूवल लेता हूँ। ईसी से अप्रूवल लेने के बाद उन्होंने वो ट्रायल स्टार्ट किया होगा हॉस्पिटल में। MR company responsible to take approval from the DCGI. सर, आई एम नॉट गेटिंग। Okay. Continue, ma'am. Please continue. Okay. Sir, for any reason, if the trial is terminated by the sponsor or by the investigator, so it should be notified to DCGI within 30 days. Okay. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो स्पॉन्सर का ही रहेगा? हाँ, स्पॉन्सर का रहेगा, क्योंकि सर अभी जैसे देखो सर, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम कोविड का कोई ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, कोई हाइपोथेसिस पे ट्रायल कर रहे हैं कि ये वैक्सीन है और ये वैक्सीन हमारा काम करेगा, लेकिन ट्रायल कुछ दिन करने के बाद हमको ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो स्पॉन्सर क्या बोलेगा कि कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा है तो आगे ले जाने कुछ फायदा नहीं है ट्रायल का, तो हम इस ट्रायल को टर्मिनेट कर देते हैं। ऐसा सोचे, अगर स्पॉन्सर सोचे तो वो इन्वेस्टिगेटर से बात करेंगे ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां भी वो ट्रायल कंडक्ट हो रहा है, वो सारे इन्वेस्टिगेटर के साथ मीटिंग करके अगर वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमको ये ट्रायल टर्मिनेट करना है, तो ये टर्मिनेट होने से पहले उनको विद इन 30 डेज डीसीजीआई को इन्फॉर्म करना है कि वी आर गोइंग टू टर्मिनेट दिस ट्रायल। ओके। तो ये सर स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। ओके सर। तो इसमें ईसी का कुछ रोल नहीं रहेगा? डीसी से एक बार टर्मिनेशन आ जाता है तो वो हाँ ईसी में सर, हो जाता है। ईसी के पास भी वो रिपोर्ट आएगा, जो इन्वेस्टिगेटर ट्रायल कर रहा है ना, जैसे आपके हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ट्रायल कर रहे हैं ना, वो आपके पास, आपके ईसी के पास भी वो रिपोर्ट भेजेंगे कि वी आर गोइंग टू टर्मिनेट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और वही रिपोर्ट डीसीजीआई के पास भी जाएगा। ओके सर। ओके मैम। ओके ठीक है।
सर एथिक्स कमेटी क्या है? एथिक्स कमेटी सर हमारा एक बोर्ड है जिसमें हमारे मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स मिलके किसी भी ट्रायल को अभी मैं उसके बोर्ड एक सेकंड में बताती हूँ सर, उस पहले उस पे ही आते हैं। तो एथिक्स कमेटी जो हमारी कमेटी है उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, उसके 7 मेंबर्स हैं सर। उसमें मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स जिसमें साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक एरियाज से लेते हैं। 1 ले पर्सन, 1 वुमेन मेंबर, 1 लीगल एक्सपर्ट, 1 इंडिपेंडेंट मेंबर फ्रॉम एनी अदर फील्ड सच एज सोशल वर्कर एंड तो सर जितने भी ये 7 मेंबर के और चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरी, तो ये जो कमेटी है ना सर, ये 7 मेंबर्स मिलके हम एक बोर्ड है जो कोई भी ट्रायल अपने पास हॉस्पिटल में आता है उसको कंडक्ट करने से पहले हम उसको रिव्यू करते हैं। क्यों रिव्यू करते हैं? तो जो हम उसका पेशेंट का राइट्स एंड सेफ्टी है कि अगर ये ट्रायल शुरू करने के बाद पेशेंट को क्या फायदा होगा, पेशेंट अगर हमारे हॉस्पिटल में आता है तो उसको इस मेडिसिन से कुछ फायदा होगा भी या ऐसे ही हम ट्रायल कर रहे हैं, तो वो चेक करना हमारी एथिक्स कमेटी का काम है। और कैसे चेक करेंगे? तो चेक करेंगे डॉक्यूमेंट से। कौन से डॉक्यूमेंट? तो जो क्लिनिकल ट्रायल के जो डॉक्यूमेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें सबसे पहला होता है प्रोटोकॉल कि कैसे ये ट्रायल हमको कंडक्ट करना है, उसके बारे में लिखा होता है प्रोटोकॉल में। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है सर आईबी, इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर। उसमें लिखा होता है कि ये जो ड्रग है उसमें क्या फॉर्मुलेशन है, उस ड्रग के बारे में डिटेल जानकारी रहती है उस डॉक्यूमेंट में। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म डॉक्यूमेंट में उसमें ये लिखा होता है कि ये ट्रायल हम कैसे कंडक्ट करने जा रहे हैं हॉस्पिटल में, इससे पेशेंट को क्या फायदा होगा और इस ट्रायल में कितनी बार पेशेंट को आना होगा, क्या हम पेशेंट को आने जाने का कुछ पैसा दे रहे हैं क्या, इस बारे में इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में लिखा होता है। और पेशेंट को लेने से पहले पेशेंट ने साइन करना है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। अगर उसने साइन नहीं किया है तो हम पेशेंट को ट्रायल में नहीं ले सकते हैं। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसका। और उसके लिए हमारे पास क्या प्रूफ होता है? तो पेशेंट ने इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म पे साइन किया है, उस पे पेशेंट का साइन भी होता है, उस पे इन्वेस्टिगेटर का साइन भी होता है। इन्वेस्टिगेटर मतलब जो भी डॉक्टर है जो ट्रायल वो कंडक्ट कर रहे हैं उनका भी साइन होता है। ठीक है सर, ये तीन डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। तो हमारी एथिक्स कमेटी के पास भी जो डॉक्यूमेंट आते हैं ना, तो वो ब्लैंक फॉर्म रहते हैं। एक प्रोटोकॉल आता है, इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर आता है, तीसरा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म आता है, फिर चौथा डॉक्यूमेंट जैसे सर मान लो कि ये ट्रायल है, उसका ये डिजाइन है कि हमको 7 दिन का ट्रायल है, पहला दिन पे हम ये करने वाले, तीसरे दिन पे हम ये करने वाले, वो सब डेटा केस रिपोर्ट फॉर्म में भरना होता है। तो सर उसका एक टेम्पलेट आता है। उसके बाद ऐसे ही सब ट्रायल के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, एक सीपीए होता है, क्लिनिकल ट्रायल अग्रीमेंट। अभी कोई भी ट्रायल आपको हॉस्पिटल के साथ करना है तो स्पॉन्सर आपको कितना पे कर रहा है? हॉस्पिटल को स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेटर को कितना पे कर रहा है, उन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन उस अग्रीमेंट में रहती है। तो हमारी ईसी का काम क्या है? हमारे ईसी का काम है कि वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना, उसके बाद ये डिसाइड करना कि ये ट्रायल हम कंडक्ट करने दे सकते हैं कि नहीं हॉस्पिटल में। कभी कभी ऐसा होता है सर कि डीसीजीआई अप्रूव कर देती है ट्रायल कि हाँ आप ये ट्रायल कर सकते हो, लेकिन एथिक्स कमेटी को लगता है कि ये ट्रायल इस हॉस्पिटल में नहीं कर सकते क्योंकि वो पेशेंट के लिए सही नहीं होगा फॉर वॉट एवर रीजन, तो वो कभी कभी डिसअप्रूव भी कर देते हैं। ऐसा भी होता है सर। अब सर हमारे पास एथिक्स कमेटी में अलग अलग तरीके के मेंबर्स क्यों होते हैं? तो इसलिए होते हैं, इसमें लीगल एक्सपर्ट की क्या जरूरत है? लीगल एक्सपर्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो लॉयर फील्ड से होते हैं। वो देखते हैं कि वो अग्रीमेंट जो उन्होंने सीटीए क्लिनिकल ट्रायल अग्रीमेंट बनाया है स्पॉन्सर ने, वो अपने लॉ के हिसाब से देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। वो लीगल एक्सपर्ट का काम हो जाता है। उसमें सर एक और होते हैं बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट। बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट का क्या काम होता है कि वो फार्माकोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो ड्रग का फॉर्मुलेशन के बारे में चेक करते हैं। ठीक है सर। फिर थर्ड होता है मेंबर सेक्रेटरी। मेंबर सेक्रेटरी का क्या रोल है? मेंबर सेक्रेटरी का रोल है कि वो मीटिंग कंडक्ट करती है या करता है, जो भी है मीटिंग कंडक्ट करना मेंबर सेक्रेटरी का काम है। उसके बाद सर उसमें सोशल वर्कर की क्या जरूरत है? सोशल वर्कर की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो अपने अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है वो वैसे लैंग्वेज में है क्या जो पेशेंट पढ़ सके और पेशेंट को समझ में आ सके। उनका काम है ये चेक करना। तो इसलिए सर अलग अलग बैकग्राउंड से हम 7-8 मेंबर्स लेते, एटलीस्ट 7 मेंबर्स तो होने चाहिए एथिक्स कमेटी के बोर्ड पे
इसलिए हम ऐसे एक कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी चेक करती है कि ये पार्टिकुलर ट्रायल इस हॉस्पिटल में कंडक्ट हो सकता है कि नहीं। तो कोई भी ट्रायल कंडक्ट करने से पहले हमको 2 जगह से अप्रूवल लेना है। ड्रग ट्रायल सर, कुछ ट्रायल ऐसे होते हैं सर जो पीएससी थेसिस वाले ट्रायल होते हैं, उसके लिए हमको डीसीजीआई की जरूरत नहीं पड़ती है अप्रूवल की, वो सिर्फ इसी का अप्रूवल लेके हम कंडक्ट कर सकते हैं ट्रायल। ठीक है सर। और तो हमारे ईसी पे एक और बहुत मेन, अभी मैंने जो इससे पहले ट्रेनिंग की थी, जलगांव एथिक्स कमेटी की ट्रेनिंग की थी, उसमें एक चीज मैंने नोटिस की थी कि उनका जो मेंबरशिप लिस्ट था ना, उसमें हमारा एक पॉइंट है जो चेंज किया गया है पिछले साल 2019 में। उस पे क्या बोला गया है कि एटलीस्ट 50% ऑफ मेंबर्स नॉट अफिलिएटेड विद द इंस्टीट्यूट। 50% जो हमारे मेंबरशिप लिस्ट के जो मेंबर्स है ना, वो हॉस्पिटल के नहीं होने चाहिए, वो बाहर के होने चाहिए। करेक्ट। ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अगर 50% मेंबर्स ज्यादा ही रहेंगे, उन अपने हॉस्पिटल के ही रहेंगे, वो तो चाहेंगे ही कि हमारा ट्रायल हो, इस हॉस्पिटल में रहे हो, इसलिए वो अप्रूवल दे सकते हैं, इसलिए उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। इसलिए ये पॉइंट सर एक बार मेंबरशिप लिस्ट पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा 50% से ऊपर ही होना चाहिए कि जो बाहर के हो। उसके बाद से एक और इन्होंने मैंडेटरी किया है कि एवरी मेंबर ऑफ ईसी शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो सच ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो डीसीजीआई ने ये कंपलसरी किया है कि अगर आपको ईसी फॉर्म करना है अपने हॉस्पिटल में, तो उनके जितने मेंबर्स हैं वो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर जीसीपी ट्रेंड होने चाहिए। अब इनका रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नए चेंजेस होते रहते हैं। एटलीस्ट वंस इन अ ईयर अगर ट्रेनिंग होगी तो हमारे जो चेंजेस होते हैं वो उनको पता चल जाएंगे। ठीक है सर, इसलिए इन्होंने इसको भी मैंडेटरी किया है। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्रीज टू 5 ईयर्स। इसके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं कि 3 ईयर्स से 5 ईयर्स तक इन्होंने आगे बढ़ा दिया है एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद। हाँ मैडम, सर, आपको पीपीटी शेयर करनी चाहिए। अगर मैंने डाउनलोड की है, मैं मेरा कंप्यूटर शेयर करता हूँ। अच्छा ठीक है। कौन सी चाहिए, ये चाहिए कि या दूसरी वाली? सर ये चाहिए, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019। ये हाँ, ओके, आप आगे बोलिए। पेज नंबर 11। Now, sir, the point 10 number point, renewal of registration of EC for clinical trial. So application for, इसमें सर ये चेंज हुआ है कि application for renewal of registration to be made 90 days prior to date of expiry। जो भी हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी रहेगी उससे 90 डेज पहले हमको अप्लाई करना है री रजिस्ट्रेशन के लिए। Proceedings of ECs for clinical trials, any change in membership or constitution should be intimated to DCGI। अगर membership list में किसी भी whatever reason के लिए अगर हम कुछ changes करते हैं तो हमें ये DCGI को भी 30 days में intimate करना पड़ेगा कि हमारी ये change हुई है। तो उसके लिए हमको अपना membership list साथ में cover letter ये हमको उनको भेजना पड़ेगा। So now the maintenance of records by ECs for clinical trial, more comprehensive requirement for maintenance of record by EC 5 years after completion of clinical trials। EC के पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो 5 years के क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होने के बाद भी 5 years के लिए अपने पास रखने हैं अर्काइवल के लिए। Suspension or cancellation of registration of EC, show cause notice, warning letter, rejection of results, सस्पेंशन एंड डिपार्टमेंट। हाँ, ethics committee for biomedical and health research, introduction of specific rule for EC pertaining to biomedical research। इसमें सर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, जो मेन चेंजेस थे वो मैंने बता दिए हैं आपको पेज नंबर 10 पे जो है और 11 पे। ठीक है सर पेज नंबर 13, permission to conduct clinical trial of a new drug or IND as a part of discovery। सर ये एक मेजर चेंज है और ये अच्छा चेंज है हमारे क्लिनिकल ट्रायल के लिए। इसमें क्या है सर कि अगर स्पॉन्सर ने किसी भी प्रोडक्ट के लिए डीसीजीआई के पास अप्लाई किया है उसके अप्रूवल के लिए,
और DCGI ने 30 डेज में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि DCGI ने उसको अप्रूव कर दिया है मैडम उस फिर से ट्रायल को। बोलिए, मुझे कॉल आया था इसलिए सुनाई नहीं दिया, फुल से बोल सकते हो? हाँ सर, परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ए न्यू ड्रग। सर कोई भी अगर न्यू ड्रग कोई भी कंपनी बनाती है, जैसे ग्लेनमार्क ने बनाई या सिप्ला ने, कोई भी फार्मा कंपनी ने न्यू ड्रग बनाया है, तो वो सबसे पहले DCGI के पास एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, वो ड्रग के लिए। तो अगर DCGI ने उनको 30 डेज तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि DCGI ने उस ड्रग को अप्रूव कर दिया है और हम क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, तो in पहले that case, we need any approval or any written document from the DCGI, or we यस assume सर, only that? यस सर आई एम जस्ट कमिंग। ओके सर, अगर मान लो कोई भी अगर न्यू प्रोडक्ट है, उसके लिए सबसे पहले स्पॉन्सर एप्लीकेशन देते हैं DCGI को, राइट। DCGI अप्रूवल लेटर देते हैं, जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, कि अप्रूवल लेटर है, DCGI ने अप्रूव किया है। इन केस अगर 30 डेज तक अगर 30 डेज तक उन्होंने कोई भी ट्रायल का डॉक्यूमेंट नहीं दिया, अप्रूवल लेटर नहीं दिया है, तो स्पॉन्सर ये अज्यूम कर लेगी कि DCGI ने उस ट्रायल को अप्रूव कर दिया है। अब स्पॉन्सर क्या करेगी कि उनके लेटर का वेट नहीं करेगी, वो जस्ट एक लेटर भेज देगी DCGI के पास कि दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस ट्रायल इन द हॉस्पिटल। जो भी इंडिया के जितने हॉस्पिटल में वो ट्रायल करने वाले, उसका सिर्फ एक लेटर DCGI को नोटिफाई करा देगी, दैट्स इट, और हम वो ट्रायल शुरू कर सकते हैं। तो पहले ऐसा सिनारियो नहीं था, पहले हमको वेट करना पड़ता था कि जब हमने एप्लीकेशन दिया DCGI के पास, हाँ, कि वो कितने महीनों तक उनके पास रखा है वो फाइल, उन्होंने चेक नहीं की, और तब तक हमको रुकना पड़ता था कि बिना अप्रूवल के हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये मेजर चेंज किया है, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, कि अगर उन्होंने 30 डेज रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम मान लेंगे कि उन्होंने अप्रूवल कर दिया और हम ट्रायल स्टार्ट करेंगे सिर्फ उनको नोटिफाई करा के। ओके ओके मैम, ओके। ओके हेलो। now the yes sir, now the page number 14, conditions for permission for conduct of clinical trial। अगर सर किसी हॉस्पिटल में किसी को ट्रायल कंडक्ट करना है, लेकिन उनके पास अपना EC नहीं है, रजिस्टर नहीं, जैसे सर अभी आपका सिनारियो है, आपके हॉस्पिटल में EC रजिस्टर नहीं है अभी, ठीक है, हाँ, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि हॉस्पिटल मुझे क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल साइट्स that do not have their own EC can use registered EC of another trial site or an independent EC that is located within the same city or within a radius of 50 kilometers of clinical trial site। It means कि अगर पता कि हॉस्पिटल में अगर आपको ट्रायल कंडक्ट करना है, आपके पास अभी अपनी EC नहीं है, तो आप अपने ही सेम सिटी में किसी और रजिस्टर्ड EC से अप्रूवल लेके ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल में। ओके 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 ओके। जब तक ये रजिस्टर नहीं होता तब तक, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद फिर आप अपना हॉस्पिटल का EC ही यूज करेंगे। ओके ओके। So condition of permission, status of enrollment of trial subjects shall be submitted to DCGI। सर ये जो फर्स्ट सबसे पहले पेज पे हमने बात की थी कि क्वार्टरली रिपोर्ट हमको भेजना पड़ता है DCGI को, जो स्पॉन्सर भेजता है और इन्वेस्टिगेटर, कि इनरोलमेंट स्टेटस के बारे में कि इस ट्रायल में इतने इनरोलमेंट हुए, वो क्वार्टरली भेजना है, और प्रोग्रेस रिपोर्ट 6 मंथली भेजना है। अगर कोई भी ट्रायल टर्मिनेट होती है तो विद इन 30 डेज में DCGI को नोटिफाई कराना है। ओके मैम, वी हैव लिमिटेड टाइम, तो हाँ सर, बस मेरा भी सर 3 बजे के बाद ट्रेनिंग है, मैं बस उसको कंक्लूड करके जो मेन चेंजेस है ना, मुझे डॉक्टर लाड ने बोला था जो मेन चेंजेस है वो कवर कर लेने के लिए, तो इसलिए बस मैं वो कर रही हूँ सर। ओके ओके ओके। मैं सारे स्लाइड्स नहीं बता रही हूँ सर, जो मेन है ना बस मैं वही बता रही हूँ।
Yeah, that's fine, that's एक fine. सर एक बार लेकिन सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पूरा स्लाइड एक बार देख लेना। जो ये न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 है ना, जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो तो मैंने बता दिए, लेकिन कुछ अभी एथिक्स कमेटी हमारी फॉर्म हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी ना, इसमें कुछ चार्जेस के बारे में भी है, मतलब कितने फेज 1 के कितने चार्जेस होते हैं वो सब के बारे में भी है, तो वो एक बार देख लेना आप। और Oh, कुछ actually, Mahesh have this PPT, so we can collect it from Mahesh, ओके sir. ओके ठीक ठीक है सर, मैंने ग्रुप पे भी भेजा है। हाँ, no issue. ठीक है Once you group में भेजा है तो no issue, we will take it. ठीक है सर, मैंने सर मेन टॉपिक्स तो कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर जब भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहती है मेंबर्स की कि कुछ ट्रेनिंग चाहिए जीसीपी या फिर कुछ अगर कुछ चेंजेस न्यू होंगे तो वो तो मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगी कि ये चेंजेस हुए और मुझे ट्रेनिंग करनी है। इसके अलावा अगर आपकी तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कोई ट्रेनिंग फिर से कंडक्ट कर लूंगी। ठीक है, मेन तो सर Okay. जीसीपी और ईसी मैम, के बारे में। हाँ सर। हेलो। हाँ, हाँ और सर। एक चीज पूछनी थी। अगर हाँ कोई लीगल कंप्लायंस आता है, मतलब लीगल कोई इश्यू आता है, तो हम हाँ। आपको आपकी हेल्प ले सकते हैं? लीगल इशू इन व्हाट सर, इन व्हाट केस? सपोज हम अगर किसी क्लिनिकल ट्रायल के लिए जा रहे हैं और हमें अप्रूवल नहीं आ रहा है, एमआर का हम्म नहीं आ रहा है, या फिर कि डीसीजीआई नहीं दे रहा है, या फिर कोई हम्म। लीगल कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो हम सर आपकी तरफ से सर सर कुछ। आपके आपके हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, आप डॉक्टर लाड को या मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके मैम, ठीक है। ठीक है ओके। सर। और अभी जब आप रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जब सबमिट करोगे ना डीसीजीआई के पास, अभी आप मतलब महेश ने बताया था मुझे कि ऑलरेडी सबमिट किया है, आपके पास ये क्वेरी आई थी कि ट्रेनिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी तो कल मैं सर्टिफिकेट आपको भिजवा दूंगी। वो सर्टिफिकेट जब भी आप सबमिट करते हो या जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उसके रिलेटेड भी आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं सर को डॉक्टर लाड को पूछ के या फिर जैसे मेरे को जैसा लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी सर। यस मैम, यस। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है सर, तो जितना है मेन टॉपिक तो कवर कर लिया है हमने, अब जैसा भी रहता है फिर मुझे आप बताना फिर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, madam.